to class 4th. Children, due to network problem, I was not able to take the class till now. And now I started the class, so come back to our classes, everybody. Now, today I'll explain you the question answers of lesson 7. Learn meanings from your book or fair copy. I have given you meanings to write to those students who are not having the book. So they have to write in the fair copy, and those who are having the book, they have to learn from the book only. There is no need to write in the fair copy. Now come to the question answers. How does the poet Gad remind of his mother in the midst of play? पोएट अपनी मम्मी को किस तरह से याद करता था जब वो खेलता था खिलौने से. In the middle of the playtime, the poet would suddenly feel a twin hovering over his playthings. It was the same thing that his mother used to hum while rocking his cradle. Thus he would remind of his mother. ये ऐसे कह रहा है कि जब भी मैं खेलता था खिलौने से, तो जो खिलौने की बजने की आवाज आती थी, उससे मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं छोटा था तो मम्मी भी मुझे खिलौने बजा के जो आवाज निकलती थी, उस जैसी आवाज मुझे आज भी कानों में सुनाई देती है. और उस आवाज को भी मुझे सुनाई देती है जो कि एक जो क्रैडल होता है, क्रैडल यानी झूला होता है, झूले को जब अपन झुलाते हैं तो उसमें से भी चू चू जैसी आवाज आती है, वो उस बच्चे को अपनी मम्मी जब झुलाती है तो वो सुनाई देती है जब वो खिलौने से खेलता है. When did the poet's mother hum the song? पोएट्स मदर ने वो गाना कब गाया? The poet's mother used to hum the tune while rocking his cradle when the poet was an infant. मदर ने जब पोएट बहुत ही छोटा था तब वो उसे झूले में झुलाती थी, उस टाइम पे वो गाना गाती थी. When did the poet feel the scent of his mother? मदर की खुशबू उसको कब महसूस होती थी? The poet feel the scent of his mother mixed with the smell of shriveled flower in the autumn morning air, or while the morning services are being carried out in the temple. उसे जब सुनाई देती थी जब ऑटम के टाइम पे ईस्ट इंडिया के अंदर एक फूल है शुशुल फ्लावर जो खिलता है, तो उसके अंदर से जो खुशबू आती है भीनी भीनी हवा से, वो उसको अपनी मदर की लगती है. या फिर सुबह के टाइम पे धूप दीप जो मंदिर पे होते हैं जिसमें अगरबत्तियां जलती हैं, ऐसे जो धूप दीप होते हैं उसके अंदर से उसको अपनी मम्मी की खुशबू आती है. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. What happened when the poet looks at a distant blue sky? आप जिसके पास बुक है वो देख सकते हैं. बच्चा रात के टाइम अपनी एक बड़ी सी खिड़की में से आसमान की तरफ झांक रहा है, तो ये पूछ रहा है कि बच्चा क्या देखता है, उसे क्या फील होता है जब वो आसमान से बाहर झांकता है. When the poet looks at the distant blue sky from his bedroom window, he feels his mother's gaze has spread all over the sky. जब बच्चा रात के टाइम पे नीले नीले आसमान में अपने पलंग के पास खड़े होके उसकी जो खिड़की है वहां से देखता है, बेडरूम की खिड़की के पास से, तो वो ये महसूस करता है जैसे कि उसकी मम्मी की परछाइयां उसको आसमान में दिखाई दे रही हैं, शैडो दिखाई
ऐसा लग रहा है जैसे बादलों के बीच में से उसको झांक के देख रही है। इज द पोएट मदर अलाइव और इज शी डेड? क्या पोएट की मम्मी अभी भी जिंदा है या वो मर चुकी है? तो आप इस पोयम से क्या, आपको क्या समझ में आया? इज शी अलाइव और शी डेड? पोएट की मम्मी तो क्या हो गई है? शी इज डेड। यस। Now we have finished the question answers. Now come to the exercise A1. This exercise I have given you to write in your fair copy. I hope those who have not got the book have written it, and those who have got the book, they can only mark it. Number 1, in autumn, the poet can smell the fragrance of jasmine flower, the rose, the shiolin flower. C में अपने राइट का आंसर लगाया था उस दिन. अगर नहीं किसी ने लगाया, जो उस क्लास के टाइम पे अटेंड नहीं थे, वो लगा लीजिए. The poet's toys remind him of A, the tune his mother sang to him. B, the gifts his mother gave him on his party. C, the fun he had as a child. कौन सी चीजों को लगाएंगे? The tune his mother sang to him. वो ट्विन जो उसकी मम्मी ने गाई थी उसको और गान के सुलाती थी या सुनाती थी. Third, when the poet looks up at the sky, he sees. जब poet sky में देखता था तो वो क्या देखता था? A, beautiful bird flying, बहुत ही सुंदर बर्ड फ्लाई करता हुआ. B, white clouds floating, सफेद बादल ऊपर घूमता हुआ. या C, his mother gaze spreading, या फिर उसकी मदर है जो कि झांक के देख रही है. क्या देखता था? जब वो अपने बेडरूम की विंडो से अपनी मम्मी की परछाइयां देखता था बादलों में से और चेहरा उसको महसूस होता था. C is right. Fourth, in this poem, the poet does not talk about his mother. A, B, the scent of perfume, and C, shisha flower. इसमें in this poem the poet does not talk about, किसके बारे में नहीं बोल रहा? वो सेंट या परफ्यूम के बारे में नहीं बोल रहा है. वो तो अपनी माँ की खुशबू के बारे में बोल रहा है जो कि फूलों की जैसी है और जो मंदिरों की धूप बत्ती जो सुबह होती है उसके में से आती है, उसके बारे में बोल रहा है. Which of the following is not true? इन सेंटेंसों में से कौन सा ट्रू नहीं है? The poet mother used to sing lories to him. पोएट की मम्मी लारियां उसके लिए गाती थी. लॉरी बोलते हैं जो बच्चों को अपन सुलाते हैं, गाते हैं तब. B, the poet cannot remember his mother at all. पोएट अपनी मम्मी को कभी भी याद नहीं कर पा रहा. या the poet sometimes feels that his mother is looking at him from द स्काई, या फिर वो चीज जो कि पोएट उसको लगता है कि वो अपनी मम्मी को देख रहा है दूर आसमान से, है ना. तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? द पोएट कैन नॉट रिमेम्बर हिज मदर एट ऑल. बी इज नॉट ट्रू, क्योंकि बच्चा तो हमेशा अपनी मम्मी की कमी महसूस कर ही रहा है और अपनी मम्मी को ढूंढने की और उसकी खुशबू को पहचानने की कोशिश कर ही रहा है. Now come on, we'll read the poem. You repeat after me. I cannot remember my mother, only sometimes in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings.
the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. Second, I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning, the smell of the Shulin flower floats in the air, floats in the air. The scent of the scent of the morning service in the temple come to me as the scent of my mother, as the scent of my mother. Last paragraph. I cannot remember remember my mother only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky. I feel that the stillness of my mother's grace on my face has spread all over the sky. अब अपन ने ये पोयम रीड कर ली.
Children, some children are just chatting in the class. Why are you chatting? Huh? Listen to the poem, listen to the lesson. एक तो वैसे ही अपनी नेट देर से आई, ऊपर से आप है ना आपस में बातें कर रही हो, चैटिंग एंड आंसरिंग टू ईच अदर सम और अदर थिंग. व्हाई नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टडीज? क्या प्रॉब्लम है? अब आपको 2 लाइन्स एवरीडे लर्न करना है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव लर्न द पोएम? कितनों ने अभी पोएम लर्न कर ली है? और कितनी लाइन लर्न करी? कम ऑन टेल मी, हाउ मेनी ऑफ लर्न द पोएम? हाउ मेनी लाइन्स यू हैव लर्न? कितनी लाइन्स आपने लर्न करी हैं अभी तक? You have to learn the poem. Learn 2 lines every day. कृतिका वेरी गुड, लर्न कर ली, पूरी लर्न कर ली, वेरी नाइस. निर्जा 2 लाइन्स. यस. और बच्चों ने कितनी लर्न करी है? यस, सम आर स्टिल टॉकिंग. Why are you talking among yourselves? जो होमवर्क देती हूँ उसको लर्न किया करो. लर्न द होमवर्क विच इज गिवन टू यू. ईशान 4 लाइन्स. ओके. मैत्री हाफ लाइन्स यू हैव लर्न. ओके. अविका ने पूरी कर ली है. मोहित 2 लाइन्स. यस. ट्राई टू लर्न और ज्यादा लर्न करो बेटा. विजुअल 5 लाइन्स. यस. ओके देन. जिन लोगों ने लर्न कर ली ठीक है पूरी, और जिन लोगों ने पूरी नहीं लर्न करी है, अभी 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन लर्न करिए, वो आगे और लर्न करते जाना 2 लाइन से. यस. आपको 2 पैराग्राफ्स इसमें लर्न करने हैं. ओके. 2 पैराग्राफ. ये इस पोएम की आपको 10 लाइन्स लर्न करनी है. You have to learn 10 lines of this poem. And now today I will give you work of this lesson, and from tomorrow means the next class will start with the new lesson number 8, Rip Van Winkle. After completing this lesson we will again move to grammar. इस लेसन को पूरा करने के बाद अपन फिर ग्रामर के लेसन पे जाएंगे. एक बार अपन रिप वैन विंकल वाला लेसन भी कर लेंगे, तो 8 लेसन इसके हो जाएंगे और बाकी का फिर उस क्लास का ग्रामर का हो जाएगा. तो नेक्स्ट क्लास में अपन लेसन नंबर 8 रीडर का ही करेंगे. सो व्हेन यू आर इन द क्लास, योर रीडर ओनली इन योर हैंड. ओके चिल्ड्रन? यस. Okay.